Welcome everyone, this is Poonam Jadhav. In the previous video, we are solving some question based on series circuit. Today, in this video, we are solving some question based on parallel resistance. So what is the equivalent resistor or effective resistors for parallel circuit or parallel resistors are equivalent or 1 upon RS RP or equivalent effective resistor equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus up to n number of resistors. If n number of resistors are connected in a circuit, then parallel resistance is 1 by R1 plus 1 by R2 plus up to n. So in this circuit there are two resistors R1 and R2 are connected in parallel. What is the question? R1 equals to 100 ohm, R2 equals to 200. What is the total resistor or effective resistor in this circuit? So, these resistors are connected in parallelly. So, firstly given R1 equals to 100 ohm, R2 equals to 200 ohm. Resistor in parallel. So, we know that the effective resistor 1 upon Rp equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So, 1 upon 100 इक्वल्स 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200. यहाँ पे एलसीएम कितना लिया है हमने? यहाँ पे है 200. तो 2 बाई 200 यहाँ पे 200 करेंगे. 2 बाई 200 प्लस 1 बाई 200. So 2 plus 1 equals to 200. 1 upon RP equals to 3 by 200. So इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP, दिस इज अ रेसिप्रोकल. अगर हमने इसे इन्वर्स किया तो क्या आ जाएगा? 200 by 3. तो इफेक्टिव रेजिस्टर इज 66.6 ओहम. तो अगर हमें एक ही सर्किट बनाना है यानी कि एक ही रेजिस्टर कनेक्ट करना है तो कितने रेजिस्टर कितने वैल्यू का लगेगा हमें? 66.6 ओहम वाला. दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस. हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the current flowing through in the circuit. How many current flowing in this circuit? Here is also two resistance R1 and R2. So firstly write down given R1 equals to 20 ohm and R2 equals to 40 ohm. Potential V equals to 120 volt. These two resistors are connected in parallelly. So according to Ohm's law, V equals to IR. V equals to IR. V 120 volt. I तो हमें फाइंड करना है. R. But resistors are connected in parallelly. So what is the total resistance? 1 upon R1 plus 1 upon R2. ठीक है. हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे. गिवन क्या क्या दिया है? R1 20, R2 40, V 120. R1 20 ohm, R2 40 ohm and V equals to 120 volt. Find I. So V equals to IR. 120 volt V and I. R1 total resistance कितना आएगा? The two resistors are connected in parallel. So 1 upon R1 plus 1 upon R2. अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, बाद में इसकी वैल्यू इसमें पुट कर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. 120 वोल्ट आई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 रेजिस्टेंस? 20 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? 40. तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 40. तो 40 के लिए हमें 240 प्लस 1 बाय 40. तो 120 इक्वल्स टू I इंटू ब्रैकेट 2 plus 1 3 बाय 40. So 120 equals to I into bracket
40/3. So I equals to 120, 120 इक्वल्स टू आई इंटू 40/3. हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है. तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड. 120 इंटू ए 3 डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आई इंटू 40. ये 40 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड. 120 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू आई. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 4 3 जार 12. सो आई इक्वल्स टू 3 इंटू 3. So I equals to 3 into 3, 9 ampere. So how many current flowing in this circuit? 9 ampere. If the resistance R1 equals to 20 ohm, R2 equals to 40 ohm, and potential V equals to 120 volt, then what is the current? I equals to 9 ampere. Next question solve करते हैं. Question number 3. A resistor having a resistance of 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm are connected in parallel and potential difference of 12 volt is applied across them. Obtain the current flowing through the circuit and through individual resistance. What is the effective resistance? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन, ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है. गिवन क्या है, R1 इक्वल्स टू 5 ओहम, R2 equals to 10 ohm and R3 equals to 30 ohm. Potential V equals to 12 volt. This is the given. First हमें क्या फाइंड करना है, obtain the current flowing through the circuit. सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, उससे पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं. सर्किट क्या आ जाएगा, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सपोज 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 and R3. This is connected in parallelly and potential है 12 volt. 12 volt की potential यहाँ पे है. तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्टली ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, एंड थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो जाएगा. तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल करंट फाइंड करते हैं. पहले हम इनकी वैल्यू ले लेते हैं. R1 5, 10, 30. R1 इक्वल्स टू 5 ओहम, R2 10 एंड R3 कितना दिया था, R3 30 एंड V इक्वल्स टू 12 वोल्ट. पहले हम इंडिविजुअल करंट फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR. सो फर्स्टली I1 V1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें करंट क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल तो सेम ही रहने वाला है पैरेलल रेजिस्टेंस में, I1 R1. सो I1 क्या मिलेगा हमें, I1 इक्वल्स टू V बाय R1. सो I1 इक्वल्स टू V, 12 डिवाइडेड बाय R 5. 12 बाय 5 कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2.5 ओहम, सॉरी 5 4 ज़ा 2.4 एम्पियर. सो इंडिविजुअल करंट यानी कि रेजिस्टेंस फर्स्ट में, ये जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाला, इसमें कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 2.4 एम्पियर.
अब हम दूसरे वाले रेजिस्टर यानी कि 10 ओम वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना फ्लो होता है वो फाइंड करते हैं। R2 इक्वल्स टू 10 ohm and V equals to 12 volt. So V equals to I2 R2. So I2 equals to V by R2. So I2 कितना आएगा V 12 divided by 10. So I2 हमें मिलेगा 1.2 एम्पियर 1.2. So सेकेंड रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। अब हम निकालते हैं थर्ड रेजिस्टेंस में से जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें 30 ओम। R3 इक्वल्स टू 30 ओम एंड V 12 वोल्ट 12 है ना 12 वोल्ट। सो V इक्वल्स टू I3 R3। तो I3 कितना आएगा V बाय R3। So I3 equals to 12 by 30. So I3 equals to हमें मिलेगा 0.4 एम्पियर। This is the individual resistor flowing in the circuit. 0.4, 1.2 and 2.4. तो यहाँ पे 2.4 आया था, यहाँ पे कितना आया था 0.4 एम्पियर। और यहाँ सॉरी सेकेंड में कितना आया था 1.2, यहाँ पे 1.2 एम्पियर और यहाँ पे थर्ड में से आया था 0.4 एम्पियर। सो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। होल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, तो होल सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा यानी कि हमें क्या करना है करंट की एडिशन करनी है 2.4, 1.2 एंड 0.4। So total current I equals to I1 plus I2 plus I3. So I equals to 2.4 plus 1.2 plus 0.4. तो कितना आएगा I equals to 4 एम्पियर। सो टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो जाएगा I इक्वल्स टू 4 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 4 एम्पियर। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट 4 एम्पियर। नेक्स्ट व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वैल्यूज कितने दिए थे 5, 10 एंड 30। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा सर्किट का 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलली। R1 20, 5, 10 एंड 30, 5, 10 एंड 30। तो यहाँ पे LCM कितना आ जाएगा 30। सो 6 बाय 30, 3 बाय 30 प्लस 1 बाय 30। सो 6, 3, 9, 10, 10 बाय 30। तो कितना आ जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/3 यानी कि RP इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा 3 ओहम। तो इस सर्किट के लिए हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए 3 ओहम। दिस इज द आंसर फॉर दिस होल क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, ऐसे कुछ सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।